Start. Periodic table. Okay. So now I will be explaining you the periods. तो कितने पीरियड होते थे? P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7. तो P1 period 1 has two elements. कितने थे? Two elements. This one had 8. ये भी 8. After that 18, 18, 32, 32. तो पहला वाला जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड. फिर क्या आता है? शॉर्ट, खाली शॉर्ट. दिस वन इज आल्सो शॉर्ट, दिस वन इज आल्सो शॉर्ट. फिर क्या आएगा? लॉन्ग. दिस इज आल्सो लॉन्ग एंड लास्ट दोनों वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड्स. ठीक. एंड अक्रॉस अ पीरियड तुम्हारा क्या बढ़ता है? अक्रॉस अ पीरियड व्हाट डज हैपन? Across a period when we move what remains same? Number of valence shell remains same. सबसे पहला बात है number of valence shell remains same. और दूसरा क्या है? और क्या कुछ चेंजेस देखते हो? The elements, the number of electrons, the number of valence electrons in fact increases by 1 as we move across a period. एक एक का जाएंगे आगे आगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा as we move across a period. These are the two things which we observe in a period. Number of shells सेम रहेगा. अगर सेकेंड पीरियड है तो how many shells? 2 shells. ठीक है ना? तो पीरियड नंबर also represents number of shells. Okay. पीरियड नंबर ये भी याद रखो. पीरियड नंबर also represents number of shells या तो ऑर्बिट्स जो भी. क्लियर? तो now we'll explain bridge elements. ठीक है ना? These are found in which period? Second period. They are found in second period where the elements shows similarity with diagonal elements of period of next group, suppose कहने का मतलब है I am taking period number 2 and period number 3. ठीक है? period number 2 में क्या था? कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. यहाँ पे कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. So lithium will show relation with magnesium. These two show similarities in properties. Beryllium shows with aluminium and boron shows with silicon. तो इस तरह का रिलेशन होता है. These are the bridge elements. ये सारे जो इसमें आएंगे they are the bridge elements and these are the typical elements. क्या बोलते हैं इनको? Typical elements. But this is only seen by elements of period number 2. Any other period elements do not show this and there is a diagonal relation. Similarities होते हैं properties में. Okay, write it down. Right, across a period number of valence shells remain same. Bit 1 number of valence cell remains same. मैं सारे पॉइंट्स एक बताऊंगा. Bit 2 metallic character decreases. Bit 3 non-metallic character increases. Metallic character decreases. Bit 3 non-metallic character increases. Bit 4 electronegativity increases. Bit 4 electronegativity increases. Bit 5 electropositivity decreases. Next, atomic radius decreases. Electropositivity decreases. Next is atomic radius decreases. लिखे? Atomic radius क्या? Decreases.
नेक्स्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. Sorry, increases. Ionization potential will increase. It will be difficult to remove an electron. Ionization potential increases. Electron affinity increases. Electron affinity also increases. ठीक है? This much. I'll be explaining you one by one. First one is what? Nature of chlorides. नेचर ऑफ क्लोराइड्स है तो स्टेट तुम ले सकते हो अक्रॉस अ पीरियड. अक्रॉस अ पीरियड में कोई सा भी पीरियड लेते हो, सपोज सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर इतना है. तो इसका क्लोराइड इज NaCl, MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, SiCl4, PCl3 या तो PCl5 दोनों हो सकता है, एंड H2Cl2. जब नेचर का बात होता है, दिस वन इज आयोनिक इन नेचर. This one is also ionic in nature. Aluminum chloride ionic भी बोल सकते हो या तो covalent also you can say. Both. This one is also ionic in nature. इसलिए इसका amphoteric भी बोलते हैं कभी-कभी. क्या बोलते हैं? Amphoteric. This one is what? Covalent. This one is also covalent. Silicon chloride is covalent. And this one is also covalent in nature. ठीक है? So this is about the nature. This is the first thing. Second is what? Nature of oxides across a period. Nature of oxides across a period. पहला वाला क्या होगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड. आफ्टर दैट MgO, उसके बाद Al2O3, फिर SiO2, ओके, देन P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, देन SO2 और एल्स SO3. देन क्लोरीन के साथ क्या फॉर्म करेगा? कौन सा ऑक्साइड? Cl2O7. ठीक है, क्लोराइड हेप्टॉक्साइड. तो सोडियम ऑक्साइड इज व्हाट? बेसिक इन नेचर एंड दिस इज स्ट्रांगली बेसिक. दिस इज बेसिक, दिस इज व्हाट? एम्फोटेरिक. ठीक, दिस वन इज व्हाट? स्लाइटली एसिडिक. दिस वन इज आल्सो weakly acidic. This one is acidic and this one is what? Strongly acidic. Okay, write first these two. कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स क्या? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसके बाद कौन सा ऑक्साइड आएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, आफ्टर दैट फॉस्फोरस P2O5, सल्फर ऑक्साइड SO2 और SO3 एंड Cl2O7. तो नेचर वाइज जब पूछ रहे, अभी क्या कैरेक्टर पूछ रहे? कैरेक्टर मतलब बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा इसका? मतलब इट विल बी व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड है ना, तो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट. दिस इज आल्सो मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक जो भी बोलो. दिस वन विल बी एम्फोटेरिक, क्योंकि एल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ऑक्साइड बिहेव्स बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. उसके बाद SiO2 कैसे बिहेव करेगा? स्लाइटली एसिडिक. स्लाइटली एसिडिक मतलब वीक एसिड बोल सकते हैं. ये भी क्या है? वीक एसिडिक. बट हम लोग एसिडिक क्यों ले रहे हैं? कोवैलेंट लेंगे, सॉरी कैरेक्टर लिख रहे हैं ना. तो दिस इज कोवैलेंट, दिस इज कोवैलेंट, और ये दोनों भी कोवैलेंट एंड कोवैलेंट. ठीक है ना, याद रखना. सारे नॉन मेटेलिक बॉन्ड्स जितने भी हैं, हाँ हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक मींस बोथ आयनिक कोवैलेंट, दोनों लिख दो, आयनिक स्लैश कोवैलेंट बोथ. ओके, उसके बाद वाला क्या था? नेक्स्ट वाज हाइड्रोक्साइड और एपॉक्सी ऐसे कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड. हाइड्रोक्साइड कैरेक्टर. हाइड्रोक्साइड कैरेक्टर में क्या होगा? पहला वाला NaOH, दूसरा वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, देन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3. ओके, उसके बाद किसका हाइड्रोक्साइड आएगा? सिलिकॉन SiOH4. आफ्टर दैट फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड क्या आएगा? H3PO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. फिर सल्फर का H2SO4 और H2SO3, दोनों में से कुछ भी. फिर क्लोरीन का क्या हो जाएगा? HClO4 फॉर क्लोरिक एसिड. ठीक है ना. हाइड्रोक्साइड्स का मतलब है हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन बोथ विल कम.
तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, ये क्या है, बेसिक है कि ऐसे लिखे, बेसिक, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज व्हाट, वीक बेस, दिस इज इवन वीकर बेस, दिस इज इवन, ये भी वीकर बेस में जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट कम्स दिस इज व्हाट, वीक एसिड, दिस इज व्हाट, वीक एसिड। एक्चुअली इनफैक्ट ये वीकर होगा, ये वीक में जाएगा, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग में जाएगा इफ यू कंसंट्रेट इट, बट नहीं तो सल्फरस एसिड कम्स इन वीक कैटेगरी, ठीक है ना। ऑन करो, ऑन करके। नेक्स्ट इज कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। सबसे पहला कौन सा आएगा, सोडियम हाइड्रेट NH, फिर मैग्नीशियम हाइड्रेट MgH2, है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रेट, फिर फास्फोरस का क्या होता है, फॉस्फाइन, उसके बाद सॉरी सिलिकॉन SiH4, फिर फॉस्फाइन PH3, फिर सल्फर के साथ हाइड्रेट कैसा होगा, H2S, उसके बाद क्लोरीन के साथ HCl, ओके। तो दिस वन इज व्हाट, strong base character wise, this one is what, weak base. After that aluminum hydrate is weaker or be weaker base, silicon hydrate is also a weaker base, phosphorus hydrate भी weaker base होता है because it has lone pair of electron. phosphorus के पास कितना रहता है बॉन्ड करने के लिए, 5, 3 हाइड्रोजन के साथ एक किया, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 बिजी हुआ, और भी 2 है ना, तो लोन पेयर है, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। सल्फर, दिस इज वीक एसिड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनफैक्ट वीकर एसिड भी बोल सकते हो, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। दिस इज द कैरेक्टर, क्लियर। इसका बॉन्डिंग कैसा होगा, आयोनिक, 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 सिलिकॉन से सारे कोवेलेंट, सब कोवेलेंट, ठीक है ना। यहां से ग्रुप 1, ठीक है ना, ग्रुप 1, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 तो ऐसे नॉर्मली 1 लिखेंगे, और या तो उसको 1 नहीं बोलते हैं, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ये क्या होता है, अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट कम्स ग्रुप 2, ग्रुप 2 या तो 2A, इसको अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, इसलिए इसका नाम ऐसा है बिकॉज़ दे आर अल्कली और दे आर फाउंड ऑन अर्थ, ऊपर ऊपर ही मिलता है, अर्थ मिट्टी में मिलता है, इसलिए अल्कालाइन अर्थ, वो नहीं मिलता खाली अल्कली मेटल्स, दे फॉर्म अल्कलीज व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, रीजन। उसके बाद कौन सा आ जाता है, ग्रुप 3 से 12, 3 to 12, इसको हम लोग ऐसे बोले जाएगा तो क्या होगा, 1B से लेके 7B एंड 8 के अंदर कितना ग्रुप्स होता है, 3, 8 के अंदर 3 ग्रुप्स होता है क्या, तो इन सारों को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी बीच में आ जाता है पोस्ट ट्रांजिशन आल्सो, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी, इसके अंदर इनर ट्रांजिशन भी आता है। इनर ट्रांजिशन का थोड़ा सा ध्यान दो, ग्रुप कौन सा होता है, 3, ग्रुप 3 होता है, 3rd से चालू होता है ना, एंड पीरियड कौन सा होता है, पीरियड 6 एंड पीरियड 7 में देखना स्टार मार्क एंड डबल स्टार दिया गया है, ठीक है ना। जो स्टार मार्क होता है दैट इज योर लैंथेनाइड, और लैंथेनाइड्स कहां से कहां तक होते हैं, सीलू, सी से लेके लुटेशियम तक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक, तो कहां से कहां तक हुआ। और एक्टिनाइड्स डबल स्टार, इसको याद रखने के लिए थ्रिलर, थोरियम से लेके लॉरेंशियम, 90 से 103, सीलू को जरा देख लेना कहां से कहां तक होता है, ऐसे कैलकुलेशंस करके पता कर सकते हैं। 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 2 कितना है, 16 20 हो रहा है, और ये 36 56 हो रहा है ना, हाँ 57 से, इनफैक्ट 56 नहीं होगा, देखो 57 से होगा, जैसे नंबरिंग तुम्हारा, क्योंकि इतना ऐड कर लो, इतने एलिमेंट्स होने के बाद वो आएगा कितना, 8 10 12 20 38 48 56 56 के बाद 57 एलिमेंट होगा ये,
57 से लेके 14 ऐड कर दो, 57, 58, 59, 60, 71 तक, ठीक है ना, 71 तक। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन कभी भी बात करेंगे तो ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? ग्रुप 13 से लेके 16 तक, 13 से 16 तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट ट्रांजिशन। क्योंकि ट्रांजिशन के बाद आता है तो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं ना, दीज आर जनरली हेवी मेटल्स। क्या होता है? ये हेवी मेटल्स होते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? लाइट मेटल्स। ये भी ध्यान रखो, कभी दे देगा पूछ देगा तो यू कैन आल्सो एक्सप्लेन। Group 13 से 16 will become what? Post transition elements. After that comes group 17. क्या आएगा? Group 17. Group 17 क्या हो जाएगा तुम्हारा? Halogens. And then आता है group 18. Group 18 या तो क्या बोल सकते हैं? 8A. Group 18 या तो 8A. This is called what? Noble gases or inert gas. Noble gas या तो इनर्ट गैस। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ग्रुप 7 है, ठीक है ना, ग्रुप 7 है। और इसको कहां से कहां तक बोल सकते हैं? 3A से लेके 6A। क्लियर या कोई डाउट? 3A से लेके 6A तक, मतलब इस तरह का, ठीक है ना। ट्रेंड ऑफ अ ग्रुप। सबसे पहला डाउन द ग्रुप क्या होता है? क्या रिमेन सेम? डाउन द ग्रुप सबसे पहला चीज क्या रिमेन सेम रहता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ग्रुप में हर एलिमेंट में क्या होगा? आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम तो क्या रिमेन सेम? केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। क्या रिमेन सेम? केमिकल प्रॉपर्टीज remain same as reason पूछेगा तो reason is what? Chemical properties depends on electronic configuration. Chemical properties depends on electronic configuration. समझ गए कि नहीं? उसके बाद डाउन द ग्रुप ये रिमेन, ये सेम रह रहा है। चेंज क्या होगा देखो, अभी चेंजेस डाउन द ग्रुप क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि एक एक ग्रुप जब नीचे आते हो पहला शेल में एक ही पहला पीरियड, मतलब ग्रुप में देखो जैसे ग्रुप में ट्रेंड्स ऐसा हो रहा है। ये कोई ग्रुप है, पहले पीरियड 1 आएगा, फिर पीरियड 2, फिर पीरियड 3, अप टू कहां तक? पीरियड 7। तो पीरियड 1 में कितना शेल रहता है? 1 शेल। पीरियड 2 में कितना शेल? 2 शेल। पीरियड 3 में कितना शेल? 3 शेल। जो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं शेल्स बढ़ रहा है कि नहीं एक एक करके, तो नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस शेल्स इंक्रीजेस बाय 1। मैंने वैसे ही बोला था अक्रॉस ए पीरियड क्या रिमेन सेम? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, क्योंकि एक पीरियड में 1 शेल है तो सारे एलिमेंट में 1 शेल ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां एक ही बढ़ रहा था, एक के बाद एक जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ बैलेंस शेल इंक्रीजेस बाय 1 बट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। तो बैलेंस शेल बढ़ता है और क्या बढ़ता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। बाकी जो ट्रेंड्स हैं आई विल एक्सप्लेनिंग यू, ओके। Now two things we are having, alkali metals जो कि 1A में आता है और ये 7A में, ठीक है। तो इसका ग्रुप कितना है? 17 and this group is what? Group 1. See is everything is coming in frame, okay? And check that. तो सबसे पहले एलिमेंट्स इसमें क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम को जनरली में कंसीडर नहीं करते बिकॉज़ दैट इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। और यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन में सबसे पहले कौन आएगा? हीलियम, सॉरी नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन।
उसके बाद वैलेंसी, ये यूनिवैलेंट है और ये भी क्या है, यूनिवैलेंट है। यूनिवैलेंट समझ रहे हो, क्योंकि इसके पास कितना आउटर मोस्ट शेल में है, एक है, तो ये एक लूज करेगा और ये क्या करेगा, साथ है, तो एक गेन करेगा ताकि ऑक्टेट फॉर्म हो जाए, ठीक है ना। ये एक लूज करके ऑक्टेट करेगा, वो एक गेन करके ऑक्टेट करेगा। नेचर, रिएक्टिविटी, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, दिस इज व्हाट, हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज आल्सो व्हाट, हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है बट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो राष्ट्र टाइप 80 होता है, 80, ठीक, एसिटाइन 80। उसके बाद काइंड, इसका काइंड क्या है, व्हिच काइंड इट इज, मेटेलिक, दीज ऑल आर मेटल्स, ये क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में एंड स्टेट में इसमें क्या जाएगा, ये कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दे आर व्हाट, गैसेस। उसके बाद ब्रोमीन इज व्हाट, लिक्विड, एंड आयोडीन इज व्हाट, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ये सारा मैंने जो बताया इज व्हाट, रूम टेम्परेचर में, ये एस्ट्रोन को लेंगे नहीं, रेडियो एक्टिविटी वापस। फिर कंडक्टिविटी, दे आर व्हाट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, good conductors of heat and electricity, and these are what, bad conductors, इनको bad conductors में रेट कर सकते हैं। reducing oxidizing nature, ये देखो लूज करते हैं, ठीक है ना, तो इनका नेचर क्या होगा, reducing in nature, क्योंकि they lose इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिसको भी देगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज तुम्हें दूंगा तो तुम्हारा लॉस होगा कि प्रॉफिट, लॉस, तो इसलिए reducing nature, they are reducing in nature, they are reducing in nature, मतलब क्या है, readily lose electrons, what, readily lose electrons, and ये क्या है, oxidizing in nature, readily gains electrons, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कहां से कहां तक बढ़ता है, डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम टू सीजियम तक, फ्रांशियम मत बोल देना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, सीजियम, फ्रांशियम इज रेडियोएक्टिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीजेस, कहां से कहां, फ्लोरीन टू लेके आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने से क्या फॉर्म करता है, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब फॉर्म करता है, और इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या है, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं चेक करो, ठीक है। और नॉन मेटल्स के साथ उसका रिएक्शन, फ्लोरीन का नॉन मेटल कोई सा भी ले लो, क्या क्या रिएक्शन में क्या आएगा बताओ, जैसे ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ ही इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, Br2 Cl2, और ये सब क्या है तुम्हारा, कोवैलेंट इन नेचर। फिर विद हाइड्राइड, हाइड्राइड के साथ क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, लिथियम हाइड्राइड, तो ये भी क्या है तुम्हारा आयनिक इन नेचर। और वहां पे हाइड्रेट HBr, HCl, दे आर व्हाट, एसिडिक एंड कोवैलेंट इन नेचर, समझ गए। सो दिस इज व्हाट यू हैव ट्राइड। पहला प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, गिव हेडिंग एटॉमिक रेडियस, and then you write the distance between the center of the nucleus, the distance between the center of the nucleus and the outermost shell, and the outermost shell is known as atomic radius, and the outermost shell is known as atomic radius, full stop. After that you write the factors on which atomic radius depends are, the factors on which atomic radius depends, the factors on which atomic radius depends are, bit 1 number of shells, bit 2 nuclear charge, bit 1 number of shells, bit 2 nuclear charge. So first periodicity is what, atomic
रेडियस, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस इज देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अराउंड। सपोज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं, सो दिस डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल जो भी होगा, यहाँ पे तो मैंने 3 ही लिया है, तो दिस इज माय एटॉमिक रेडियस, तो रेडियस ऑफ nth शेल जो भी। सो इसको जो चेंज होता है, इट चेंजेस बाय टू थिंग्स, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ शेल्स। तो इसमें ऑब्वियस सा बात है, इफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स तो दरवाजा, शेल्स अगर बढ़ते जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे एक शेल था तो एटॉमिक रेडियस कम था, 2 शेल हुआ तो और बढ़ा, 3 हुआ तो और बढ़ा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज वो अगर बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जोर से खींचेगा कि धीरे खींचेगा, जोर से। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जोर से खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये 2 फैक्टर्स हैं, इनको देख के हम पहला क्या करेंगे, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में पहला बिट 1 इज व्हाट, अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा जरा देखो, अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रिमेन्स क्या, सेम, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीजेस। क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड पहला वाला जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहा है ना, एक एक करके, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे ही एटॉमिक नंबर मेरा बढ़ते 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 जा रहा है, माय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। तो अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस 1 by 1, बढ़ते जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, तो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं किया। बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या है उसके साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हाँ, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, व्हिच इंप्लाइज, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अक्रॉस अ पीरियड ट्रेंड्स क्या है, एटॉमिक रेडियस व्हाट, डिक्रीजेस। After that second, down the group, second trend is what, down the group। ग्रुप में नीचे नीचे आने से क्या होगा, तो ग्रुप में नीचे नीचे आने से सबसे पहला क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस 1 by 1, इंक्रीजेस 1 by 1, एंड न्यूक्लियर चार्ज भी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ बढ़ क्या है ना, देखो एक पीरियड में प्रोटॉन बढ़ते 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 फिर से सेम जगह जब पहुंचा है तो डाउन द ग्रुप जैसे आ रहा है तो प्रोटॉन्स भी तो बढ़ा है ना, तो दोनों बढ़ रहा है, बट इसका इफेक्ट को कम मानेंगे, दिस वन प्रीडोमिनेट्स, दिस वन व्हाट, दिस फैक्टर प्रीडोमिनेट्स हियर। दोनों फैक्टर में न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा इफेक्टिव है नंबर ऑफ शेल्स। जोर से खींचने से भी अगर गेट्स बढ़ गया है तो ऑब्वियसली ना उसको खींच के बांधने से भी तो रेडियस बढ़ के ही रहेगा ना, दैट्स व्हाई दैट वन प्रीडोमिनेट्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस का मतलब क्या है, शेल्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर शेल्स बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, प्रीडोमिनेट्स, हेंस एटॉमिक रेडियस व्हाट, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड, क्लियर। पहला प्रॉपर्टी है, स्टार्ट किया। नेक्स्ट ट्रेंड क्या है तुम्हारा, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, दिस इज व्हाट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove, to just remove an electron, to just remove an electron from the valence cell, from the valence shell of an isolated gaseous atom. ठीक है ना, the minimum amount of energy required to just remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is known as ionization potential. बहुत बार पूछता है ionization potential 1, ionization potential 2, तो ये क्या होगा, energy required to remove first electron, energy required to
रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, और ये क्या होगा सेकेंड फ्रॉम वैलेंस शेल, और ये क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। जनरली होता कैसे, कोई भी अगर एक है मेटल या जो वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इट विल फॉर्म व्हाट प्लस एंड एलिमिनेट्स वन इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइम पे जो एनर्जी निकला है उसको बोलेंगे आयनेशन पोटेंशियल 1। बट अगर यही इसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है m प्लस विल गिव वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो m कितना हो जाएगा 2 प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो प्लस वन मोर इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आयनेशन पोटेंशियल 2। ठीक है ना, हमें हीट देना पड़ रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हीट देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है रिक्वायर्ड। तो अभी इसके फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, तो सबसे फैक्टर्स में दो ही चीजें होती है, एक होता है एटॉमिक साइज, ठीक है, और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। तो समझा तो कैसे डिपेंडेंस, अगर एटॉमिक साइज कम है मतलब अट्रैक्शन जोरदार है, अट्रैक्शन अगर जोरदार है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि इजी होगा, मुश्किल, ठीक है ना, तो मुश्किल होगा मतलब आयनेशन पोटेंशियल भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, एटॉमिक ट्रेंड्स कैसा है, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन इज व्हाट, एटॉमिक साइज अगर कम है, इफ एटॉमिक साइज इज लेस मतलब अट्रैक्शन क्या है स्ट्रॉन्गर, तो अट्रैक्शन इज व्हाट, अट्रैक्शन इज हाई, तो मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयनेशन पोटेंशियल इज आल्सो हाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि, तो एटॉमिक साइज इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन पोटेंशियल। न्यूक्लियर चार्ज में सिंपल देखो, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, न्यूक्लियर चार्ज मोर मतलब ज्यादा जोर से खींचेगा, अट्रैक्शन भी क्या होगा हाई, जोर से खींचेगा अट्रैक्शन हाई, तो निकालना इजी होगा कि मुश्किल, मुश्किल मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आयनेशन पोटेंशियल इज आल्सो व्हाट हाई। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अभी ट्रेंड्स, तो सबसे पहले ट्रेंड्स क्या होगा, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिक्रीजेस, अक्रॉस अ पीरियड रेडियस तो घट रहा था ना, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज व्हाट इंक्रीजेस, मैंने बोला ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते बढ़ते जाएगा एक एक करके अक्रॉस द पीरियड, बट साइज क्या होगा घटते जाएगा, बिकॉज़ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो जोर से खींच रहा है, तो साइज क्या घट रहा है। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीजेस है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए इंक्रीज, दोनों के हिसाब से व्हिच इंप्लाइज आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी मोर, ये भी क्या इंप्लाइज करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी मोर। तो अक्रॉस अ पीरियड व्हाट हैपेंस, across a period ionization potential what increases, ionization potential increases, समझ रहे हो कि नहीं, तुम थोड़ा देख के यार ध्यान से करो, लिखने में ध्यान में ज्यादा मत दो, सब फोकस में आना चाहिए, सब समझ कहाँ से रहे हो मैं बोल रहा हूँ। वापस देखो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, अक्रॉस अ पीरियड रेडियस घटता है एंड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, बिकॉज़ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स सबसे बढ़ेगा, बट एटॉमिक रेडियस अगर घट रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाट इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीजेस, तो इसके हिसाब से दोनों को कंबाइन करेंगे तो अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस यू सी, डाउन द ग्रुप खुद सोचो, हमें पता है एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाता है, ग्रुप में जैसे नीचे नीचे आएंगे तो एक एक शेल बढ़ते जा रहा है, तो रेडियस भी क्या होगा बढ़ रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ना, बट रेडियस ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा बिकॉज़ वो शेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये प्रीडोमिनेट करेगा, तो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है इट इंप्लाइज आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाट डिक्रीजेस, और ये अगर बढ़ रहा है तो इट इंप्लाइज आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाट इंक्रीजेस, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, बट प्रीडोमिनेट्स कौन, दिस वन प्रीडोमिनेट्स, प्रीडोमिनेट्स तो उसका कंक्लूजन को माना जाएगा, मतलब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है एंड लोएस्ट किसका है, यहां से पता चला अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है बढ़ रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ा एंड डाउन द ग्रुप घटा, तो पीरियोडिक टेबल में पूरा उस कॉर्नर में जो होगा उसका सबसे क्या होगा मैक्सिमम,
तो मैक्सिमम हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका? हीलियम। उस कॉर्नर में कौन है? हीलियम। और इस कॉर्नर में जो होगा पूरा पीरियोडिक टेबल के इस कॉर्नर में पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, अक्रॉस द पीरियड व्हाट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सबसे इस कॉर्नर में जो होगा उसका क्या होगा? लोएस्ट। तो लोएस्ट में किसका होगा? सीजीएम। हम लोग फ्रैंशियम आता है सबसे नीचे, बट फ्रैंशियम इज रेडियो एक्टिव, यानी उसको कंसीडर नहीं करते। दिस इज सीजीएम। ओके, ये याद रखना एग्जाम में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछेगा व्हिच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम एंड लोएस्ट इज सीजीएम। ओके, इस तरफ है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझो क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना, बाय एन आइसोलेटेड gaseous atom when when it accepts an electron to form an ion। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जब होता है तो इट फॉर्म्स कैटायन। तो और एक चीज भी याद रखो, एनर्जी रिलीज्ड अगर होता है तुम्हारा डेल्टा एच जो कि लिखते हैं दैट इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक के लिए। एनर्जी रिलीज मींस व्हाट इट इज? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो अभी एक चीज देखो, नॉर्मल है कुछ भी m, इट रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, तो प्लस c करेंगे तो इट फॉर्म्स व्हाट m माइनस, और यहाँ पे जो भी डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो अभी फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन? सेम फैक्टर्स। पहला वाला फैक्टर क्या है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज सपोज इंक्रीज हो रहा है, मैंने लिखा एटॉमिक साइज, इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सोचो साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन क्या है? कम है कि बहुत ज्यादा है? कम है। अगर साइज बड़ा है तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। अगर छोटा साइज है, देखो समझो, एटॉमिक साइज इज मोर, ठीक है, तो अट्रैक्शन इज व्हाट? कम। लेस। साइज बहुत बड़ा है तो अट्रैक्शन तो बहुत कम है, तभी तो साइज बड़ा है ना। अट्रैक्शन कम है तो इजीली एक्सेप्ट करेगा क्या इलेक्ट्रॉन को? नहीं। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होता तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आए तुरंत एक्सेप्ट करता, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो और यहाँ पे बोलेगा कि तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इट इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट? इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। अगर एटॉमिक साइज तुम्हारा क्या हो रहा है? सॉरी डिक्रीजेस होगा ना, नेगेटिव वैल्यू की बात हो रही है। मैं अभी इसी का एक ट्रेंड में मैं समझाता हूं। एक चीज समझो, एक जगह मैंने लिखा -20 और एक जगह मैंने लिखा -30, व्हिच वन इज ग्रेटर? -20 इज ग्रेटर। तो समझ रहे हो ना, अगर वैल्यू का मतलब मेरा ज्यादा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो माइनस ऑफ दैट वैल्यू ना, तो -30 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लेस। समझ गया ना? तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है, सोचो 100 जूल ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट वो एक्चुअल में क्या -100, तो -100 मतलब वो उल्टा हुआ ना, जो सोच रहे हैं उसका उल्टा। समझ गए? और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। सपोज इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन खींच रहा है, तो अभी आराम से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। जोर से खींच रहा है ना, आराम से, मतलब 20 जूल में हो जाएगा ऐड। तो 20 जूल मतलब -20, तो वैल्यू कम है कि ज्यादा है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि -100 के कंपैरिजन -20 क्या है? ज्यादा है। अंडरस्टूड द लॉजिक? तो अभी हम लोग आएंगे अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? देखो, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीजेस। अक्रॉस अ पीरियड साइज तो घटता है ना, मैंने बात समझा चुका ऑलरेडी। अगर साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, पहला। और दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, एक एक करके न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इंप्लाइज इंक्रीजेस। तो दोनों को देखते हुए अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अभी कौन आएगा? डाउन द ग्रुप। नाउ अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस।
बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, एक एक शेल बढ़ते जाता है ना डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीजेस इट इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट डिक्रीजेस। और बिट 2 न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है Increases. बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते बढ़ते आए हैं, बट वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा इंक्रीजेस। बट डाउन द ग्रुप किसको हम लोग अटेंशन देते हैं नंबर ऑफ शेल्स को, तो दिस वन प्रीडोमिनेट्स, ये क्या हो जाएगा प्रीडोमिनेट्स। तो उसका कंक्लूजन क्या था व्हिच कन्वेज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है Decreases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। समझ गए, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस और अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस जो कि ग्रुप 70 है 7A हैज मैक्सिमम व्हाट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अल्काली मेटल्स जो होता है ग्रुप 1A क्या लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो तुम्हारा नोबल गैस होता है जो कि ग्रुप 8A या तो ग्रुप 18 उसका क्या होता है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका क्या हो जाएगा जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर, कवर में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, हैलोजेंस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, अल्काली का लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल गैस का जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका रीजन पूछेगा बहुत बार, इसका रीजन क्या है बिकॉज नोबल गैसेस कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नोबल गैसेस के ऑलरेडी फुलफिल्ड आर already fulfilled, so they don't accept electrons। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसका आयनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा क्या होगा जीरो। तो उसी हिसाब से हम लोग जब सोचते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका दिखता है फ्लोरीन, क्योंकि अगर नोबल गैस को हटा देंगे यहाँ से जब जाएंगे सबसे ऊपर के कौन आ रहा है फ्लोरीन, बट फ्लोरीन इनका नहीं होता, क्लोरीन का होता है बिकॉज फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। फ्लोरीन के पास दो ही शेल है और दो ही शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है, इलेक्ट्रॉन में छोटा सा शेल में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है रिपल्शन। तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा फ्लोरीन। वेरी गुड, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। और रीजन क्या होता है यहाँ पे फ्लोरीन एक्चुअल में होना चाहिए बट फ्लोरीन हैज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion due to small size, due to small size। ये बहुत लोग गलत करते हैं, फ्लोरीन लिख के आते हैं बट आंसर इज एक्चुअली व्हाट फ्लोरीन। ओके, राइट इट। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा हाई, तो इजीली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा इजीली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता है क्रॉस पीरियड क्या होता है इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है इंक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को देखा जाता है तो दोनों ही इंक्रीज होता है। बहुत बार हम लोग एग्जाम में क्या लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो वो घट रहा होगा, नहीं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है ना, साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल लोगे, अगर घर बहुत बड़ा है तो बाहर से चोरी करने में क्या दिक्कत, समझ रहे हो क्या। तो ये भी क्या है डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, पूरा सेम एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, बंद करो, स्टॉप करो।